ہماری معیشت کے بلا شبہ اس وقت تقریباً تمام آشاریے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن کی گواہی دے رہے ہیں۔ معیشت کو درپیش چیلنجز حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الارمنگ شکل اختیار کر رہے ہیں۔ 4 ماہ میں روپے کی قدر تقریباً 11% گر چکی ہے۔ $4.5 ارب کی ایکسپورٹس کے مقابلے میں $12 ارب کی امپورٹس کی وجہ سے صرف 2 ماہ میں $7.5 ارب کا ریکارڈ تجارتی خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ہے۔ افغان صورتحال بھی معاشی عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے قبضے سے قبل روزانہ کم از کم $5 ملین پاکستان آتے تھے، مگر اب اتنے ہی ڈالر افغانستان جا رہے ہیں۔ کل ہمیں انٹرویو میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایکسچینج ریٹ میں اتار چڑھاؤ کو عارضی قرار دیا تھا۔ یہ دونوں سائیڈ میں فلکچویٹ کر رہا ہے۔ 2 دفعہ یہ 152 تک گیا، پھر واپس 167 پہ آیا۔ تو یہ فلکچویشن ہوتی رہتی ہے ایکسچینج ریٹ میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی وقتی طور پہ افغانستان کے ڈالر جا رہے ہیں یہاں سے، اور اس نے بھی تھوڑا سا پریشر کریٹ کیا ہوا۔ تو میرے نزدیک تو کوئی ایسی اتنی زیادہ لمبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں مارکیٹ فورسز جیسے آپ یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی ان ٹرمز آف افغانستان، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پریشر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی دباؤ کے پس منظر میں بالآخر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان میں شرح سود میں اضافے کا فیصلہ کیا۔ مختصر شرح سود 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ناکافی ہے، کیونکہ مارکیٹ اور پھر خود پاکستانی سیکیورٹیز میں جو شرح سود میں اضافہ ہوا ہے وہ 50 بیسس پوائنٹس کے قریب نظر آتا ہے۔ گویا کہ یہ صورتحال بھی اتنی تسلی بخش نہیں ہے جیسی کہ ہوا کرتی تھی۔ اسی پس منظر میں پاکستانی معاشی چیلنجز کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سہما ہوا نظر آ رہا ہے۔ مارکیٹ کا انڈیکس مسلسل ہچکو کھا رہا ہے۔ آج دوپہر 1 بجے انڈیکس میں 1210 پوائنٹس کی کمی سے لے کر تقریباً 2.7% تک گراوٹ آ چکی تھی۔ تاہم شیئرز کی قیمتوں میں استحکام قدرے آیا اور مارکیٹ 411 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 45,597 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ کل اور آج انڈیکس میں 950 پوائنٹس کی کمی آئی ہے اور 2 دنوں میں پاکستان اسٹاک سے 2% گری ہے۔ اس پوری صورتحال میں یہ بات اہم ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے یعنی کہ جب سے افغانستان کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، پاکستان کی امپورٹس اور ڈالرز کی مانگ بڑھ رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں جیسا کہ ہم نے بھی بتایا اضافہ کرنا پڑا ہے، اور اسی اضافے کے بعد آج مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے اور مسلسل گراوٹ ہے۔ کل انڈیکس میں 519 پوائنٹ کی کمی ہوئی تھی، آج 411 پوائنٹ گری ہے۔ 1 ماہ قبل 23 اگست کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 48,112 پوائنٹ پر تھا اور آج 45,597 پوائنٹ پر آیا۔ گویا 1 ماہ میں تقریباً 2515 پوائنٹ کی کمی سے مارکیٹ تقریباً 5.5% گر چکی ہے۔ 2 ہفتے قبل MSCI انڈیکس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریٹنگ کو بھی ایمرجنگ مارکیٹ سے کم کر کے فرنٹیئر مارکیٹس میں اور اس کے انڈیکس میں شامل کر دیا تھا۔ معاشی چیلنجز اور اس کا ریفلیکشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر اور سیریس مارکیٹ چیلنجز پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے سلسلے میں دعوت دی ہے جناب کامران ناصر کو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں JS گلوبل کیپٹل کے۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ یہ ہم مارکیٹ میں پریشر دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ جو عوامل میں نے ذکر کیا ہے یہی وجہ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ پرومیننٹ وجہ کیا ہے جو کہ جس پہ یہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ نروس نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، اور بڑا اچھا آپ نے انالیسس کیا اور اس نے سم اپ کیا جو اس وقت پرابلمز پاکستان فیس کر رہا ہے۔ میں اس میں صرف ایک چیز کو ایڈ کروں سر کہ سب سے امپورٹنٹ اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اگر آپ 2017 بھی یاد کریں جب مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائی پہ گئی تھی، وہاں سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2 ارب سے بڑھنا شروع ہوا تھا اور آگے جو وہ چلتا گیا اس طریقے سے مارکیٹ نے ریٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پریشر بلڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کل کو انفلیشن بھی بڑھے گی، کل کو روپی پہ بھی پریشر آئے گا، تو وہاں پہ جا کے انویسٹر کوشش ہو جاتے ہیں۔ اور آیا بالکل یہ نظر بھی آیا، انفلیشن بھی آئی اور روپی پہ پریشر بھی آیا۔ یہی ہوا۔ اب آپ سر اس کو ریوائنڈ کر کے چلے جائیں سن 2020 کے اندر جب کووڈ آیا، جس ٹائم پہ کووڈ نے پاکستان کو ہٹ کیا، پوری دنیا کو کیا، سو ساری گلوبل اکانومیز اس وقت اکانومی کو مانیٹری ٹائٹنگ کی بجائے مانیٹری ایزنگ کی طرف چلی گئی، اور اس ایزنگ کے اندر پیکیجز بھی دیے گئے، پاکستان نے بھی دیا، پاکستان نے ٹرف دیا، پاکستان نے ایک معاشی پیکیج گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر عمران خان نے دیا، پلس آپ دیکھیں کہ اس وقت 13.25% انٹرسٹ ریٹ تھا جس کو گرا کے 7% کیا گیا۔ اس وقت خیال یہ تھا کہ معاشی ترقی اتنی تیزی سے نہیں ہوگی، لیکن تمام ہمارے جو اندازے تھے
تھے उससे बेहतर कोविड पे गवर्नमेंट ने काबू पाया और जो भी उसके मुहर्रकात थे, इनके इकदाम बेहतर थे, उसके नतीजे में आपने देखा कि इकॉनमी ने ग्रो बहुत तेज़ी से किया। अब हो क्या रहा है, अब इंटरनेशनली भी आप देखें सो सारे के सारे जो ममालिक हैं वो कर ये रहे हैं कि 100% इकॉनमीज़ को ओपन अप करने जा रहे हैं। डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट डेल्टा वेरिएंट, सबका ये ख्याल है कि माशी आज़ादी देना बेइंतहा ज़रूरी है और हमें सीखना पड़ेगा इसके साथ रहना। सो ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ बातें होना शुरू हो गई हैं। और हालिया एक ये फैक्टर जो कि इन तमाम फैक्टर्स की एक क्या वजह हो सकती है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स की प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट कर गई हैं, फ्रेट चार्जेस स्काई रॉकेट कर गए हैं, शिपिंग चार्जेस स्काई रॉकेट कर गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कभी किसी ने इतना नहीं सोचा था कि इस लेवल की ये हमें कीमतों में इजाफा होगा ग्लोबली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से लेकर तमाम प्रोडक्ट्स, फ्रेट, ये तमाम चीज़ें। उसने कितना इम्पेक्ट किया हमारी इस करंट अकाउंट डेफिसिट को और हमारे इस वक्त के जो ट्रिबुलेशंस हैं उनको? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया और मैं आगे इसकी तमहीद वही बांधने लगा था। अगर आप देखें तो कोल की प्राइसेस पिछले 12 महीनों में 160% से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। उसके अलावा ऑयल से लेकर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं ऑन एवरेज 60% का इंक्रीज आया। कोल और ये वो आप सारा मिला लीजिए। अब आप पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें और ख़ास तौर पे जब ये बजट दिया गया था इसको प्रो ग्रोथ रखा गया था। प्रो ग्रोथ का मतलब ये था कि इन्होंने इंपोर्ट साइड को थोड़ा सा रिलैक्स किया था। अगर आप इंपोर्ट बिल में भी देखेंगे तो फूड आइटम्स में एक बेपनाह इजाफा है, ऑटोमोबाइल इंपोर्ट बहुत तेज़ी से हो रही है, टर्फ के अंदर मशीनरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई जिसका इम्पैक्ट अब आप देख रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट नंबर जो बड़ा हो रहा है तो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि शायद ये इतना लास्टिंग नहीं होगा, 2-3 महीने में ये भी टेपर ऑफ कर जाएगा क्योंकि हमने एक फैसिलिटी दी थी, उसमें मशीनरी ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हुई। सो इंटरनेशनली भी और लोकली भी आप इसको कह सकते हैं कि सुपर कमोडिटी साइकिल जो है वो आ चुका है और उसके आने से सर्टनली जो पैसा मूव करता है वो इक्विटी से निकलता है और इंटरनेशनली भी देखेंगे तो वो बॉन्ड्स में जाता है, बॉन्ड्स की वहाँ पे यील्ड जो है वो स्पाइक करना शुरू हो गई हैं और उसके अलावा ये जो पैसा है ये राउट हो जाता है कमोडिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स के अंदर। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे तो एक सूरत हाल ऐसी बनती है कि जिसमें लोग, आपको पता है कि लोगों का सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म पे ज्यादा चल रहा होता है, जो न्यूज़ फ्लो करती है वो रिएक्शनरी ज्यादा होते हैं। इसमें एक आई वुड से लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, क्योंकि इस वक्त अपेरेंटली ये लग रहा है कि कुछ रेकलेस स्पेंडिंग हम कर रहे हैं और शायद हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट होना चाहिए, हम नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल हमने फैसला किया कि लेट्स गो टू द IMF और अपना प्रोग्राम को दोबारा शुरू करें, जिसका मतलब ये है कि हम एक फिस्कल डिसिप्लिन देखने जाएंगे और उसके अलावा जो इसमें मज़ीद डिसिप्लिन की ज़रूरत है वो हम देखेंगे, जिससे शायद इस सिचुएशन को बेहतर बनाने में मदद मिले। और वो जब हो जाएगा तो क्या वो मार्केट की, आपकी मार्केट को स्टेबलाइज करने में माविन साबित होगा? बिल्कुल माविन साबित होगा। देखें, छठा IMF की जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट आनी है और उसका जो रिव्यू चलेगा 29 तारीख से, उसमें पाकिस्तान जा रहा है। और मेरे ख्याल में कल जो आपने प्रोग्राम किया था विद शौकत तरीन साहब, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी 1-2 बातें कही थी। नंबर 1, उन्होंने हाईलाइट किया था कि हम इंपोर्ट साइड को अब कॉशन से देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जहाँ पे कहीं रिलैक्सेशन दी गई थी वो उसको वापस कंट्रोल करके इस जगह पे ले आएंगे कि उसको सस्टेन किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल में IMF में जाने से पहले अगर आपने 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखा, मेरा ख्याल है कि बड़ा कैलकुलेटेड इजाफा था। मार्केट में बॉन्ड की यील्ड जो थी वो तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट का इंडिया दे रही थी। सो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से पॉजिटिव है कि बहुत ही ग्रेजुअल हर चीज़ को बहुत तहम्मुल से देखते हुए ये चल रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट नॉर्मली जब कंट्रोल से बाहर होता था इंटरेस्ट रेट तब इंक्रीज किए जाते थे। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो ही कंट्रोल से बाहर होने लगा तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट पे मेजर अपना ले लिया। सो ये एक खुशाइन बात है। एक ये व्यू भी आ रहा है कि ये तमाम चीजें पहले तो गवर्नमेंट्स जो थी वो जाने देती थी, वो स्लिपेजेस जारी रहते थे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का दौर हो। और जब ये गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये होता है। लेकिन इस दफ़ा ये कि जैसे US को अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल अरेस्ट करने की कोशिश की गई और मैं बड़ा खुश था वो इंटरव्यू सुन के कि गवर्नमेंट इस वक्त उस चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली देख रही है अभी से। नॉर्मली जो हमने पीछे पास में अभी तक देखा है कि जब भी कोई चीज़ हो जाती थी तो रिएक्शन में मेजर जब लिया जाता था वो बहुत देर हो जाती थी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता था। सेकेंडली मेरा ख्याल है कि कामर साहब आप वैसे देखें
मार्केट्स में, सो पाकिस्तान आज भी इंतहाई सस्ती मार्केट है अगर आप रीजन में कंपेयर करें। सो वो एक नेचुरल शिफ्ट पाकिस्तान के पास रहेगी। और जैसे आपने जिक्र किया था शुरू में कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया गया इमर्जिंग मार्केट से टू फ्रंटियर मार्केट्स, हालांकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में शायद ये इतनी अच्छी बात ना होती, लेकिन क्योंकि मार्केट का हमारा साइज ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर गया हुआ है, तो फ्रंटियर मार्केट में जाने से हम डॉलर इनफ्लो एक्सपेक्ट करते हैं। ये बताइए कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत मार्केट करते रहे हैं, आप सब कहते हैं, अभी आपने भी कहा कि बेस्ट वैल्यूएशन है, बेस्ट मार्केट है, बेस्ट इसमें पोटेंशियल है, मगर उसके बावजूद इन्वेस्टर क्यों नहीं आता है? क्या क्या वजह है? फॉरेन इन्वेस्टर पहले तो हम ये समझते थे कि शायद उसको बाहर इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो पाकिस्तान इतना अट्रैक्टिव नहीं, फिर भी इतनी अट्रैक्शन के बावजूद ये कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट वाइप आउट क्यों हो चुका है फॉरेन इन्वेस्टर? देखिए, उसकी होने की वजह कुछ हमारे ऐसे इकदाम थे जो हमने पीछे लिए। रेगुलेटरी साइड के ऊपर आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और अनफॉर्चुनेटली हमने उस रफ्तार से नहीं की। पिछले 2 साल मैं समझता हूं कि बहुत पॉजिटिवली और प्रोएक्टिवली इन्होंने काम किया, जिसकी एक मिसाल रोशन डिजिटल अकाउंट थी, जिसका पोटेंशियल जितना अभी आपने उसमें सरमाया आते देखा है, ये इसको आप 10-15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ये यहाँ खड़ा हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी जितनी भी पोस्चरिंग है और जितना इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, और जो इदारे इसमें शामिल हैं जैसे स्टेट बैंक हो गया और SCCP हो गया, अगर ये इसमें और मुतारिक होंगे और कमर्शियल बैंक्स मुतारिक होंगे, ब्रोकरेज फ्रेटर्निटी मुतारिक होगी, तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा आप अपने पास ला सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो थी वो सिक्योरिटी कंसर्न था। मेरा ये ख्याल है कि आज हम जियो पॉलिटिक्स को और ये जियो इकोनॉमिक्स दोनों मिक्स हो गए। सो आज सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स या लोकल इकोनॉमी का ताल्लुक नहीं, जियो पॉलिटिक्स भी प्ले कर गई है। अफगानिस्तान का जो ये इशू था, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए मैं सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये देखता हूं कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न तो सिक्योरिटी के चैलेंज था। वो वेस्टर्न फ्लैंक आपका कवर हुआ है, वो कवर हुआ है। अगर वो कवर हुआ है, उसके साथ अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल भी सामने आती है, मेरे ख्याल में वो शॉर्ट लिव्ड होगी, शॉर्ट टर्म होगी, और हमारा जो फैसला है इसके ऊपर अगर हम उस पर डटे रहें और कायम रहें, तो कम से कम पाकिस्तान उस सिक्योरिटी सिचुएशन और सिक्योरिटी चैलेंजेस में अरेस्ट होता। मुझे नजर आता है कि वो बहुत थोड़ी सी उधर स्टेबिलिटी, हम IMF पे चले जाएं तो ये कोई अट्रैक्शन होगी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए? बिल्कुल होगी जी। जब आप IMF के प्रोग्राम में रहते हैं और उसके चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, तो आपको मल्टीलैटरल एजेंसीज पैसे देती हैं, और आपका जो कल को चैलेंज है कि आपने पैसे वापस भी करने हैं अगले साल में, अगले 12 महीने में तकरीबन $18.5 अरब की आपकी रीपेमेंट्स हैं इंटरेस्ट समेत, वो सारी की सारी आपको जो है यूरो बॉन्ड इशू करने से, मल्टीलैटरल एजेंसी से वो पैसा मुल्क में आता है। सो वो पैसा आने में सबसे ज़्यादा मुआवन जो चीज़ साबित होती है कि फॉरेन इन्वेस्टर ये देखता है कि क्या पाकिस्तान IMF की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, क्या उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर वो हो रहा हो तो फिर आपकी सिचुएशन इकोनॉमिकली बहुत अच्छी होती है, जिसमें शायद गवर्नमेंट पहले 1 साल में इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए वो बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कामरान नासिर हमारे साथ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद